Good evening, praise the Lord. Greetings to all in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Along with me, Sharon, after so long, she's coming, and because of her personal issues, she was not able to come. But we know that God is always faithful. Bible says that even though we turn unfaithful, but God is faithful. Amen. And we thankful to the Lord for this wonderful message that today God had enlightened in our hearts to speak and to preach, because it's time to reach and preach. So this is the time we had started. So Sharon will speak in Hindi and I will be speaking in my language English, so that all the people who are watching us from overseas, they were able to understand English, and the ones of the beloved people of our nation, they could also understand in Hindi. So I'll give time to Sharon and she will share with you, and then we'll start with the message. Yes. सभी को जय मसीह की खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। खुदा ने इतने समय बाद हमें मौका दिया कि सचमुच हम दोनों लैंग्वेजेस में बहुत समय बात कर सके। हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं और आज की मीटिंग को खुदा के हाथों में देते हैं कि जो वचन खुदा ने जो टॉपिक हमारे वीडियो में डाला है, हम उसको आपके साथ साझा करने वाले हो सके और सचमुच इसके द्वारा खुदा के नाम को महिमा और जलाल मिले। So let's start with the topic today, and the topic is keep your lamps burning, or let your lamps burning. और चलिए हम आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जो विषय है हमारा तुम्हारे दिए जलते रहे। So what is the scripture that support we will read? Be dressed ready for service and keep your lamps burning. और हम वचन में इसको पढ़ेंगे, लूका उसका 12 अध्याय उसकी 35 आयत। तुम्हारी कमरे बंद ही रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। It's a wake-up call for working of the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के लिए जागने की बुलाहट है। You know, many people are working for their own glory. बहुत सारे लोग अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी महिमा के लिए कार्य कर रहे हैं। And many people are wanting to make their own kingdom. और बहुत सारे लोग अपना राज्य स्थापित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। But today, my friends, I would like to say you that it's a wake-up call today in these end days. आज हम आपको बताना चाहते हैं कि आज आखिर समय में परमेश्वर के राज्य के लिए हम सबको जागने की बुलाहट है। Because Jesus has not come to establish the kingdom of earth, but he has come to establish the kingdom of heaven. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में पृथ्वी का राज्य स्थापित करने नहीं, बल्कि स्वर्ग का राज्य स्थापित करने आए। And he has not come to just establish, but came to express the kingdom of heaven. और वो सिर्फ स्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि उस राज्य को प्रकट करने के लिए आए थे। So we have to be very specific about what we are doing. और हमें इस बात के लिए पूरा ध्यान देना कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। What does it mean, keep your lamp burning? इसका मतलब क्या है कि अपने दिए जलते रहें। Be prepared all the time. कि हमें हर समय तैयार रहना चाहिए। You had not to be prepared for today, हमें सिर्फ आज के लिए नहीं प्रिपेयर रहना, but you had to prepare tomorrow today. पर हमें आगे के दिनों के लिए भी, आगे के लिए भी हमें तैयार रहना है। You had to prepare from today. और हमें आज से ही तैयारी करनी है। You will be waiting that we will see tomorrow. और हम इंतजार करते हैं कि हम कल करेंगे। But Bible says that you had not to think about tomorrow. पर वचन कहता है, अंजील कहती है कि हमें कल के लिए इंतजार नहीं करना है। But we had to prepare today for tomorrow. और पर हमें आज के दिन कल के लिए तैयारी करनी है। You know, church has to be led in the leadership of God. इसलिए कलीसिया को जो परमेश्वर के आज्ञाकारी में चलने की बहुत जरूरत है। And we had to be very specific that when we are born again, और हमें इस बात के लिए बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि जब हमारा दूसरा जन्म होता है, we are not in the leadership of man. और हम मनुष्य की संगति उसके नीचे नहीं है। We are not in the fellowship of our boss. और हम अपने ऊपर जो हमारे ऊपर के उपदेशक है, हमारे पदवी है, जो हम उनके अंडर नहीं है। When you're born again, जब हमारा दूसरा जन्म होता we है, are in the leadership of God. हम परमेश्वर की संगति में, We are in the leadership of Holy Spirit. हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होते हैं। We are in the leadership of our Holy Spirit, और हम पवित्र आत्मा के पीछे चलने वाले who हैं। is the very great counselor. और जो बहुत बड़ा उपदेशक है, बहुत बड़े स्थापित है। You know, when Jesus had given a promise in John 16, और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 16 अध्याय में एक वादा किया है that I will give you a helper, कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा and he will tell you about the righteousness, judgment, and sin. और वो हमें धर्म के प्रति और पाप के प्रति जागरूक करेंगे। And he will not leave us as orphans.
और हमें वो इनात में जोड़े। You know, we will see in 1 Corinthians chapter 6 verse 17. और हम देखेंगे पहला करंथिया उसका 6वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में, But he who is joined to the Lord. और जो कोई प्रभु की संगति में रहता I है, will speak on some point in this. और मैं इस आयत के कुछ भाग पर बोलूंगी, That who is joined with the Lord. जो प्रभु की संगति में रहता है, And Jesus said he will bear fruit. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो फल लाएगा, Because when we are joined with the Lord, क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, service to Lord becomes very powerful. जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में काम करते हैं, वो काम हमारे कार्य बहुत मजबूत होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So we had to know when we join with the Lord, our service automatically gets effective. और जब हम परमेश्वर की संगत में होते हैं तो हमारे कार्य में भी बहुत बड़ा बदलाव आता है। You know, ministry is not run with the efforts of man. और हम देखते हैं कि जो हमारी मिनिस्ट्री है, जो हमारी प्रभु में काम है, वो सिर्फ अकेले हमसे नहीं चलते हैं। But when you are joined with the Lord, your ministry, your mission becomes successful. और जब हम प्रभु की संगति में जुड़ते हैं, तब जो हम प्रभु के लिए कार्य करते हैं वो मुमकिन होता है। And that what it says, the one who is joined with the Lord is one spirit with him. और इसलिए लिखा है वचन में, और जो कोई प्रभु की संगति में है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। Hallelujah. हालेलुया। So you had to remember whatever you do in this world, और हमें ये याद रखने की जरूरत है कि हम कुछ भी इस संसार में कर रहे हैं, but you had to join with the Lord. पर हमें प्रभु की संगति में जुड़ना है। You had not to get everything in this world. हमें सब कुछ इस जगत में प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। If you are a missionary, अगर आप एक मिशनरी हैं, if you're a pastor, अगर आप एक पासवान if हैं, you're a prophet, अगर आप एक भविष्यवक्ता हैं, and if you're an evangelist, और अगर आप इंजील को फैलाने वाले हैं, or you are any 5 positions of the Bible which mentioned, और जो 5 पदवी जो बाइबल में दी हुई हैं, आप उनमें से हैं, but put one priority above all, पर उनमें से सब में से एक चीज को सबसे ऊपर रखिए। you had to join with the Lord. आपको परमेश्वर की संगति में You had to be in His fellowship at first. और आपको परमेश्वर के साथ संगति सबसे पहले स्थान में रखनी है। And that is why Jesus said that keep your lamps burning. इसलिए प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि अपने दिए जलते रहें। How our lamps will burn कैसे हमारे दिए जलते हैं? when we will be with God, जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, when we will be joined with God, जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, when we will sit in His presence, जो हम उनकी आज्ञाकारिता में उनके निश्चय कदमों में बैठे, when we will sit with God and talk to God every day. जब हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनसे बात करेंगे। You know, to hold a Bible in your hand is very easy. बाइबल को, पवित्र कलाम को अपने हाथों में पकड़ना बहुत आसान है। To preach from the scriptures is very trendy. अगर आप इसमें से प्रचार फैलाते हैं, वो भी बहुत आसान है। And people are just in a craze that I want to hear such pastor, I want to hear such person, I want to hear such person. और लोगों के मन में बड़ी अपेक्षा होती है कि मैं इस पासवान को सुनना चाहता हूँ, इस पासवान को सुनने की इच्छा रखता But the हूँ। very important thing, my friend, I want to tell you, बट एक बहुत जरूरी बात जो हम आपको बताना चाहते that हैं, if you're not joined with the Lord, अगर आप परमेश्वर की संगति में नहीं जुड़े हैं, and you cannot understand the word of the prophet who is real and who is fake, और आप इस बात में अंतर नहीं समझ पाते कि कौन सच्चा भविष्यवक्ता और कौन झूठा। and Jesus has mentioned many times about one point which is highly ignored. यीशु ने एक कथन के बारे में कई बार उल्लेख किया है जिसे बहुत अनदेखा किया जाता है। One point which is very ignored, एक जो उल्लेख है जिसे अनदेखा किया जाता and है, that is be prepared. वो है तैयार रहें। Be prepared. तैयार रहें। How we are going to prepare ourselves? और हम कैसे अपने आप को तैयार करेंगे? We had to prepare ourselves by just sitting in His presence and becoming like Jesus every day. और हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ संगति करके, उनके साथ बैठकर। You know, you can hear thousands of people who is preaching Jesus Christ, और हम हजारों लोगों को सुन सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, but you had not to make them your idol. पर हमें उनका सामने उनको प्रायोरिटी नहीं देनी है, उनको अपने सामने नहीं रखना। Because this is the foolishness which has been done by people in this time. और ये सबसे बड़ी बेवकूफी है जो आज के समय में लोग कर रहे हैं। If someone get popular, they will hear them 1,000 times and they will say, this is the God, and they will be prioritizing more than Jesus.
और अगर वो देखते हैं कि हाँ इस पासबान से मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है इनको सुनना, तो वो उनको अपने सामने रखते हमेशा उनके बारे में सुनते हैं And और they give priority more than Jesus. और वो उन्हें प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर स्थान देने की They कोशिश करते हैं। hadn't died for you, my friends. वो पासबान आपके लिए मरा नहीं है, Only Jesus died for you. सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर अपनी जान He had, not any pastor had sacrificed everything to get you. और किसी भी पासबान ने अपना सब कुछ कुर्बान नहीं किया आपको Only हासिल करने के Jesus लिए। had done this and he gave his life and left heaven for you. और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पर आपके लिए दी और स्वर्ग के राज्य को आपके लिए छोड़ा। You can leave everything, आप सब कुछ छोड़ सकते हैं, but don't leave Jesus. सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को मत छोड़िए। Don't leave him ever in your life. प्रभु यीशु मसीह को कभी अपनी जिंदगी में मत Because he is the oil in your lamp. छोड़िए। और वही प्रभु यीशु मसीह आपके जो दिए हैं उनका तेल है। Hallelujah. Hallelujah. He is the only oil which will let you to keep burning and spread the light. वही तेल है जो आपको आपके दिए जलने में सहायता करेंगे और इस जगत में प्रकाशमान होने की Because सहायता Jesus करेंगे। said, I am the light of the world. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूँ। Whoever follows me जो मेरे पीछे आएगा never walk in darkness वो ever. अंधकार में न चलेगा। Hallelujah. Hallelujah. So we will see, Shan, would you take from your Bible Matthew chapter 24 verse 42 to 44. और हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 24 अध्याय उसकी 44 से लेकर 44 आयत तक। Yes, so until Cheryl will take it out, I will read for you in English. It's a Message Bible. So we will read and tell you side by side. So stay awake, alert. What it's written? Would you take it? 42. इसलिए जागते रहो, Yes. You have no idea हमें बिल्कुल प्रभास नहीं होगा, what day your master will show up. क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। But you do not know this. क्योंकि हम नहीं जानते, Because Bible says that you have to be alert. क्योंकि बाइबल कहती है, वचन कहता है कि हमें जागने की जरूरत You know how you will be awakened today. है। और कैसे हम जागेंगे इस संसार If में? you will get the light. अगर हमें रोशनी मिलेगी। How you will walk on the dark path हम कैसे अंधेरे रास्ते में चलेंगे when you will get the light. अगर हमें रोशनी मिलेगी। And how your light will shine और हमारी ज्योति कैसे चमकेगी when you will be joined with Jesus जब हम Christ. प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ेंगे। Hallelujah. Hallelujah. The one who is shining bright can know about coming of Jesus Christ. Yes. और जो रोशनी प्रभु यीशु मसीह आपको देगा उसके से ज्यादा चमकीली रोशनी आपको कहीं नहीं मिलेगी। And when you will be knowing, when you will be shining well, और जब आप अच्छे से जो अपने ज्योति को प्रकाशमान कर रहे होंगे and then you will know that when Jesus will come. और तब आपको पता लगेगा कि प्रभु यीशु मसीह कब You will see from Bible आएगा। हम वचन में से देख सकते हैं that Jesus said that you only have to be prepared. उनकी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आपको सिर्फ तैयार होने की जरूरत है। Yes. So we will see the next scripture. It says, but you do not know this. You know that if the homeowner had known what time of night the burglar would arrive, he would have been there with his dogs to prevent the breaking. Yes. परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। But in 44 it says, be vigilant. और इसलिए लिखा है 44 में, इसलिए तुम भी तैयार रहो। You have no idea when the Son of Man is going to show up. और हम जानते नहीं कि प्रभु किस दिन आएंगे। Many times it has been said that you have to be awakened, you have to be vigilant. और बहुत बार बताया जाता है कि आपको तैयार होने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। Who can only wait? और जो इंतजार कर सकते हैं, Who can do that? कौन इंतजार कर सकता Who है? can be shining and lighting up itself? कौन खुद को अपनी ज्योति दे सकता है? The one who is always having the fellowship with Jesus Christ. वही जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा हो, उसकी संगति प्रभु के साथ हो। It doesn't matter you are a very big personality. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप बहुत बड़े आदमी है कि नहीं। It doesn't matter that whatever you do and where you're from. और ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आप कहाँ से और कहाँ से बिलोंग करते हैं। You know, death doesn't see any age. और आप जानते हैं कि मौत उम्र नहीं देखती है, It comes on everyone. वो कि हर किसी पर आती है। So the coming of the Lord is just like that. और प्रभु यीशु मसीह का आगमन सिर्फ इसी He प्रकार है। doesn't see any age or any time. वो उम्र या समय नहीं देखेंगे, He will come in His perfect time. वो अपने समय में आएंगे। And we have to be very ready.
और हमें तैयार रहना होगा। Because in the two scriptures it said, be ready, stay awake. और हमने जो दो वचन पढ़े हैं उनमें लिखा है कि तैयार रहे, जागते रहे। And we will see one more scripture, that is Deuteronomy chapter 4 verse 9. और हम एक और वचन देखेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय उसकी 9वीं आयत Its में। starting is very beautiful. और जब वो वचन स्टार्ट होता है, शुरू होता है, वो बहुत ही खूबसूरत है। Only pay attention and watch yourselves closely. तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। What it says, pay attention and watch yourself clearly, सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, so that you do not forget the things, कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी, the things which you have seen and they do not depart from your heart all the days of your life. कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी हैं उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे। You know, the three things are very important in it. और 3 चीजें इस वचन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। One is pay attention, पहला, सचेत रहें, watch yourself closely, और दूसरा, अपने मन की बड़ी चौकसी करें, and third is that keep everything in your heart. और तीसरी है कि हर एक चीज को अपने हृदय में रखें। Whatever miracles he did for you, जो भी आश्चर्यक्रम प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए किए, whatever he had done for you, जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए किए, whatever Bible says about anything, और जो भी पवित्र कलाम आपको बताता है, whatever direction is given by Bible, जो रास्ता हम वचनों में से पाते हैं, you have to keep in your heart. हमें उसको अपने हृदय में रखना। You know, God said to Joshua और हम देख सकते हैं कि खुदावन ने जोशुआ से बोला था that you have to keep the law in your heart. कि तुम्हें व्यवस्था को अपने हृदय में रखना You had not to depart from you. और वो तुम्हारे हृदय से कभी उल्लंघन न हो। And that is why you will be successful if you keep my word. और तभी तुम विजय पाओगे, तभी तुम जीतोगे, तब तुम्हारे हृदय में मेरा वचन होगा। Amen. आमीन। So there is a very beautiful statement I would like to speak. और मैं एक बहुत अच्छा एक उल्लेख आपको बताना चाहती हूँ। One of our mistakes can cause us to stumble. हमारी एक गलती हमें ठोकर खिला सकती है। One mistake. सिर्फ एक गलती। Either you speak a lie, अगर हमने कोई झूठ बोला, if you steal anything, अगर हमने किसी प्रकार की चोरी की, if you do any work which is against Bible, अगर हमने कोई भी कार्य किया जो परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ हो, it can make you stumble. और वो हमें ठोकर खिला सकती है। It doesn't matter that you are a very big personality. I always say this. मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई मायने नहीं रखता आप कौन है, आपका मायना क्या, आपका पदवी क्या है। If you are following God with whole of your heart, अगर आप पूरे हृदय से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, then you have to be very alert that you will not make any mistake. तो आपको इस बात में बड़ा सचेत रहना चाहिए कि आप कोई गलती ना करें। Bible says, वचन कहता है, 1 John chapter 3, पहला यूहन्ना उसका 3वां अध्याय, the one who is born from God जो परमेश्वर से जन्मा है never sin. कभी पाप नहीं करता। Now we will see, yes, और हम देखेंगे, how the lamps will be kept burning. और हम देखेंगे दिए कैसे जलते रहेंगे। The very first thing, जो पहली बात इसमें देखेंगे, living a lifestyle of faith, विश्वास, समर्पण और पवित्र आत्मा के साथ, living a lifestyle of faith, submission, and intimate relationship with Holy Spirit. विश्वास, समर्पण और पवित्र आत्मा के साथ संगति वाला जीवन शैली। That's a very powerful statement. और ये बहुत बड़ा मजबूत उल्लेख। You know, people are living in this time और हम देखते हैं कि लोग इस समय में जी रहे हैं, with hopelessness, अब भी आशाहीन होकर जी रहे हैं and they have no hope. और उनमें कोई आशा नहीं है। But on the another part, पर हम दूसरे हाथ में देखें, we can live a life of faithfulness. हम एक विश्वास योग्य जीवन जी रहे हैं We can have a lifestyle of faith और हमें विश्वास का जीवन जी रहे हैं, because we have an example of Abraham, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है अब्राहम का, that he walked with God. कि वो परमेश्वर के साथ चले थे। When we talk about submission, और जब हम बात करते हैं समर्पण की, Jesus Christ is the best example. और प्रभु यीशु मसीह समर्पण के लिए सबसे बड़ी और सबसे सिद्ध उदाहरण है। Hallelujah. Hallelujah. Because Bible says that he gave himself for church. क्योंकि वचन कहता है कि उसने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया And he just gave his flesh that it can be broken. और उसने अपना शरीर, अपना मन, सब कुछ कलीसिया के लिए That कुर्बान कर दिया, he can get us.
किस लिए कि वो हमें पा He सके, can get you, वो आपको पा सके, and He can get the people who will listen this message again. और जो लोग इस वचन को सुनेंगे उनको पा सके। Hallelujah. Hallelujah. So the scripture says in 1 Thessalonians chapter 5 verse 19, और वचन कहता है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसकी 19 आयत do में, not quench the spirit. आत्मा को ना बुझाओ। We had not to quench the spirit. हमें आत्मा को बुझाना नहीं है, We had not to do such things which will let the spirit to be quenched. और हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे हमारी आत्मा बुझे। If you want to go in heaven, अगर आप स्वर्ग में न जाना चाहते you हैं, need Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा की जरूरत You है, need Jesus. आपको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत You है, need the Holy Father. आपको परमेश्वर की जरूरत है, You need the scripture that we had in our hands. आपको इन वचनों की जरूरत है जो हम हाथ में पकड़े हुए हैं, And we are preaching from the scriptures. और हम वचनों में से ही प्रचार कर रहे हैं। Bible says, वचन कहता है, man shall not live with bread, और वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जिंदा but रहता, every word which comes out from the mouth of God. पर हर एक शब्द से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। In second scripture we will see, और हम दूसरे वचन में देखेंगे, book of Ephesians chapter 4 verse 30. इससे उसका 4 अध्याय उसकी 30 आयत में, Do not grieve the Holy Spirit of God with whom you were sealed for the day of redemption. और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। You had been sealed by the marvelous Holy Spirit. आप लोग आप पर शाप दी गई है पवित्र आत्मा की, And you are not an ordinary person. और आप एक आम इंसान नहीं हैं। In this world, people are living without hope. और इस संसार में लोग बिना आशाहीन होकर जी रहे You हैं, can see that a number of people are dying every day. और हम देख सकते हैं कि हजारों लोगों की मृत्यु हो रही है हर दिन, Just not getting oxygen, they die. और सिर्फ ऑक्सीजन सांस ना आने से उनकी मृत्यु हो रही है। But we are sealed by Holy Spirit. पर हम पर पवित्र आत्मा की शाप है, Not for just purpose to do sin at night. और उसके लिए नहीं जो हम पाप रात को करते हैं। You know, many people just commit adultery at night. और बहुत सारे लोग व्यभिचार करते हैं रात में, And in the day they worship God at highest, that they are the most religious people. और दिन में वो ऐसे प्रभु की आराधना करते हैं जैसे उनसे धर्मी कोई होता नहीं है। Jesus had not come to do religious practices. और प्रभु यीशु मसीह धर्म के काम करने के लिए नहीं आए थे, He had come to create the eternal kingdom of spirit. और वो आत्मा का उस राज्य स्थापित करने के लिए आए। And the second thing we will see, और दूसरी बात जो हम इस विषय में देखेंगे, be like the 5 active virgins. 5 कुंवारियां की तरह बने। What are the 5 virgins? और वो 5 कुंवारियां कौन थी? The one who were wise. जो समझदार थी। We will see from the scripture. और हम वचन में से देखेंगे, And before that, I would like to say something. और वचन में से पढ़ने से पहले हम आपको कुछ बातें बताना चाहते That हैं। 5 virgins were well dressed for the wedding, and the lamps were burning. 5 कुंवारियों की पोशाक विवाह के और उनके दिए जलते रहे, Because their focus क्योंकि उनका ध्यान was on coming of the bridegroom. दूल्हे के आने पर था, Yes, their focus was on the coming of the bridegroom. और उनका जो ध्यान था वो दूल्हे के आने पर था। Now we will see from scripture, that is Matthew chapter 25 verse 1 to 10. और हम वचन में से देखेंगे मत्ती उसका 25 अध्याय उसके 1 से 10 आयत में। Yes, take it out, yes. And we will read from the second. Now 5 of them were wise and 5 were foolish. हम देखेंगे दूसरी आयत से, उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। And third says, those who were foolish took their lamps and took no oil with them. और तीसरी आयत में देखते हैं, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, But the wise took oil in their vessels with their lamps. परंतु समझदारों ने अपने मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। And fifth verse says, but while the bridegroom was delayed, 5वीं आयत में, जब दूल्हे के आने में देर हुई they all slumbered and slept. तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। But we will see on the 6th verse, और हम 6वीं आयत में देखेंगे, and at midnight आधी रात को a cry was heard, धूम मची, behold, देखो the bridegroom is coming. दूल्हा आ रहा है, Go out and meet him. उससे भेंट करने के लिए चलो। Then all those virgins arose and trimmed their lamps. तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी, And the foolish said to the wise, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, give us some of your oil, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, for our lamps are going out. क्योंकि हमारे मशालें बुझने को हैं। Yes, see in the 9th verse, but the wise answered, और हम 9वीं आयत में देखेंगे, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, saying, no, lest there should not be enough for us and you,
जागृति हमारे लिए तुम्हारे लिए पूरा न हो, but go rather to those who sell and buy for yourselves. भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। And while they went to buy, जब वे मोल लेने को जा the रहे थे, bridegroom came, दूल्हा आ and पहुंचा those who were ready और जो तैयार थी went in with him और वो उसके साथ विवाह के घर में चली to the गई wedding, और द्वार बंद किया गया and the door was shut. और द्वार बंद किया गया। Now we will see in the 11th verse. और हम 11वीं आयत में देखेंगे। Afterward, the other version came also saying, Lord, Lord, open to us. इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। But he answered and said, उसने उत्तर दिया, Assuredly I say to you, मैं तुमसे सच कहता हूँ, I do not know you. मैं तुम्हें नहीं जानता। We will see that these 5 virgins who were very wise, और हम देखते हैं उन 5 समझदार कुंवारियों की ओर, that they had already prepared for tomorrow. और उन्होंने कल के दिन के लिए पहले से तैयारी कर रखी And they didn't prepare today for today only. और सिर्फ उन्होंने आज के दिन के लिए नहीं तैयारी की They prepared for the time then when the bridegroom will come. और उन्होंने तब तक तैयारी की थी जब तक कि दूल्हा आना चाहता। I want to tell you one thing. हम आपको एक बात बताना चाहते हैं That if you are saying that Jesus will come at another point, we will be comfortable to live. और अगर आप ये सोचते हैं कि यीशु मसीह उस समय आएंगे जब हमारी तैयारी करना सबसे आसान होगा, But Bible says you don't know when he will come. पर वचन कहता है हम नहीं जानते कि यीशु मसीह कब Moment आएंगे। you will be thinking that there is delay. और उसी समय जब आप ये सोचने शुरुआत करेंगे कि परमेश्वर का आने में देरी है, At the time he will come. तो अभी वो आ जाएंगे। Why you are enjoying the lustful life? क्यों आप इन दुनियावी चीजों में, शारीरिक चीजों में अपना जीवन Why गुजारते you are enjoying drinking alcohols? हैं? क्यों आप शराब पीने में अपनी जिंदगी Why you are व्यर्थ करते enjoying taking cigarettes? हैं? क्यों आप धूम्रपान पीने में अपनी जिंदगी व्यर्थ कर रहे हैं? Why you are enjoying while having another girl relationships? और क्यों आप दूसरे लोगों के संबंध बनाने में जुड़े हुए Do हैं? you know that you will wake up in the morning? आपको पता है कि आप अगली सुबह उठेंगे? We don't know. हमें नहीं पता, But Bible says पर वचन कहता है you had to accept this good news of Jesus Christ. कि हमें जो सुसमाचार को एक्सेप्ट करना है, उसको अपनी जिंदगियों में लेना And है, you had not to be limited to yourself. और हमें सिर्फ आप खुद तक नहीं सीमित We रहना, had to tell to other people. हमें दूसरों तक We पहुंचाना had to be like that 5 virgins और हमें उन 5 कुंवारियों की तरह who होना है prepared for tomorrow. जिन्होंने कल के लिए तैयारी की थी And they started from today. और उन्हें आज से तैयारी शुरू की। We will see from 3rd point. और हम तीसरे पॉइंट देखेंगे इसमें, Refrain your tongue from evil. अपनी जीभ को बुराई करने से रोके रखें। That's a very powerful thing. और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। It is very hard to control our tongue. जीभ को वश में लाना सबसे ज्यादा मुश्किल है Our tongue, but it can lead us to eternal hell. और यही जीभ अनंत काल के लिए नरक में भेज सकती है। Our only tongue, सिर्फ हमारी ये जीभ, it will take us to eternal hell और हमें नरक में ले जा सकती है। because it is so powerful. ये बहुत ताकतवर है। We will see from a scripture that is Proverbs chapter 6 verse 16 to 18. और हम एक वचन की ओर ध्यान देंगे, नीति वचन उसका 6वां अध्याय, It's a very powerful thing, my 16 friend. से लेकर 18 तक देखेंगे। And one of that before, our tongue, ears and eyes and our most important heart. Yes. और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होनी चाहिए कि हमारी जीभ, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा दिल Must be controlled by God. परमेश्वर के कंट्रोल में हो, We परमेश्वर की will, मर्जी के अनुसार। now we will see the things which is hated by God. और हम उन चीजों के बारे में ध्यान देंगे जिनको परमेश्वर घृणा करते हैं। These 6 things to the Lord hates. Yes, 7 are. 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है वरन 7 है, And are an abomination to him, a proud look, जिनसे उनको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, a lying tongue. झूठ बोलने वाली जीभ, And in 18 we will say a heart that devises wicked plan. और 18वें में देखेंगे वो मन जो झूठी बातें बोलता है। And you can see that these things are being used by Satan and it is used for devilish purpose. और हम देखते हैं कि इन चीजों का प्रयोग शैतान पूरी रीति से कर रहा है अपने बुरे कामों करने के लिए। And that is the point, my friends, we have to give it to God. और यही चीजें जिनको वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमें परमेश्वर को सौंपनी We है। have to give this to God, that God, you please control everything. और इन्हें हमें परमेश्वर को सौंपने की जरूरत है और कहना है कि परमेश्वर इसको अपने कंट्रोल में रखे, इनको अपने हृदय संभाल Now कर next रखे। we will see that where we have to keep our ears. और आगे हम देखेंगे हमें अपने कान कहाँ रखने हैं।
In 20, my son, keep your father's command and do not forsake the law of your mother. और 20वें आयत में देखेंगे इसी अध्याय की, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना त्याज। Bind them continually upon your heart. इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख Tie them around your neck. और अपने गले का हार बना ले। When you roam, और वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई they will lead you. और वह तेरी अगुवाई करेंगे। When you sleep, they will keep you. और सोते समय तेरी रक्षा। And when you awake, they will speak with you. और जागते समय तुझसे बातें करेंगे। You know, organs of body is made for what purpose and is used for what purpose has to be seen seriously. शरीर के अंगों का बनाया जाना क्या मकसद था और किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको गंभीरता से देखना होगा। Our organs are made for the glory of God. और जो हमारे अंग है परमेश्वर को महिमा देने के लिए रचे But गए they have been used by Satan. पर वो शैतान को इस्तेमाल कर रहा है शैतान। Satan is using and he's just, letting our lamps not to burn. और जिनका प्रयोग शैतान कर रहा है और वो हमारे दिए जलने नहीं दे रहा। And that is why we are not shining in this world. और इसलिए हम इस जगत में प्रकाशमान नहीं हो पा रहे। In today's time, आज के समय में the difference in Christ believers मसीह के विश्वासियों में and in the world, और लोगों में क्या अंतर है, there is no difference in lifestyle. और अब उसमें कोई अंतर नहीं रह गया Because they both seem same in this world. क्योंकि वो एक समान लगते हैं संसार Because में। your lamps were empty. क्योंकि जो हमारे दिए हैं उनमें तेल नहीं है, They are खाली हैं, empty. खाली है। Now we will see fourth thing. और हम चौथी चीज देखेंगे इसमें। Take away yourself from the wrong fellowships. अपने आप को गलत संगतियों से बाहर निकालो। That is very important. और ये बहुत महत्वपूर्ण है। We become the same like the fellowship we are in. हम वैसे बन जाते हैं जिस संगति में हम रहते हैं। Either you sit with sinners, और अगर हम पापियों की मंडली में we बैठते will हैं, become like them. और हम पापियों के समान बन जाते If we हैं, will sit with righteous, और हम अगर सच्चे लोगों के साथ बैठेंगे, we will become like them. और हम उनकी तरह बन जाएंगे। And we will sit with the people who speak lie. और जो लोग झूठ बोलना पसंद करते हैं, We will also practice the same. और हम भी वैसे ही करेंगे। And if we will sit with the thief, और अगर हम चोरों के साथ बैठेंगे, and we will do the same. तो हम भी चोरी ही करेंगे। You have to see today, my friends, आपको आज देखने की जरूरत है। that if you want to shine अगर आपको प्रकाशमान होना है, or if you want to die, या अगर आपको नरक में जाना है, मरना है, the decision is yours. आपका जो निश्चय लेना है, जो आपको करना है, वो आपके हाथों में In है। Proverbs chapter 13 verse 20, और नीति वचन उसका 13वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में, walk with the wise and become wise. बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, For a companion of fools suffers harm. परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। You know that when we sit with the righteous and wise people और आप जानते हैं जब हम मनुष्य बुद्धिमानों की संगति में बैठते हैं, and we become wise, हम बुद्धिमान हो जाते हैं। that's why in the very beginning stage of our life, और हम देखते हैं कि जो हमारी जब हमारी शुरुआत होती है हमारी जिंदगी में, our parents used to say one thing, और हमारे जो माता पिता हमें से एक बात बोलते हैं, that you have to sit with good people. वो हमें सिखाते हैं कि आपको सही इंसानों के साथ बैठना, सच्चे You लोगों के have साथ to बैठना। make friends who are very good with you. और आपको उन लोगों के साथ उन लोगों को दोस्त बनाना है जिनके साथ जो बहुत अच्छी हैं। The very reason is that this is the where we will get a good fellowship. और हम जो इस बात के लिए हमें पूरा अपेक्षा होनी चाहिए, पूरा निश्चयवान होना चाहिए कि हम जिस लोगों के साथ बैठ रहे हैं वो सही हो। And that is the beginning, my friends, where we will be having good fellowships or bad fellowship, it's on us. और इसी बात से शुरुआत होती है कि हम एक अच्छी संगति में रहेंगे, जो झूठी संगति में रहेंगे, But- ये सब कुछ हम पर निर्भर करता But है। you must have one main thing, और पर आपके हृदय में एक जरूरी बात होनी चाहिए, that is self-control. वो है खुद पर होना, नियंत्रण। नियंत्रण होना, Yes, self-control. खुद पर नियंत्रण होना। Because until and unless you don't control yourself, और जब तक आपको खुद पर अपना कंट्रोल नहीं होगा, you will surely face the devil people in the world. और जब आपका खुद पर नियंत्रण नहीं होगा, आप जरूर झूठे लोगों के साथ मिल जाओगे। But thanks unto be the Lord that He is with us. तो खुदावन का धन्यवाद कि वो हमेशा हमारे साथ And He will never let the wrong people to come in our life. हैं। और वो जो झूठे लोग हैं, जो बुरी संगतियां हैं, आपके जीवन में आने नहीं You देंगे। know, God made man for relationship and to seek Him with the desiring heart. और परमेश्वर ने मनुष्य को एक संबंध बनाने के लिए रचा कि उनके लिए पूरे हृदय से, पूरे मन के साथ उनके साथ संबंध We बनाए। will see from Ezra chapter 7 verse 10. और हम देखेंगे एज़रा की पुस्तक में 7वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में, For Ezra had devoted himself to the study and observance of the law of the Lord. क्योंकि एज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ,
बूझ लेने और उसके अनुसार चलने, and to the teachings, decrees and laws in Israel. और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। And Bible says that our relationship established while we meditate on the word of God every day. और वचन हमें बताता है कि हमारी संगति तब परमेश्वर के साथ जुड़ती है अगर हम रोज वचनों को पढ़ें और इस पर ध्यान दें। And more you will go in the word of God, और जितना हम वचन की गहराइयों में जाते हैं, when you more involve yourself in the word of God, और जब हम जितना हो सके परमेश्वर के वचनों को दिल की गहराइयों से पढ़ना शुरू then our करेंगे, lamps will be filled with the oil every day. और वैसे ही साथ हमारे हमारे दियों में तेल भरना शुरू हो जाए। You know, your service is not based on man's service, और जो हमारे कार्य हैं वो मनुष्यों के लिए ना हो, but for God's delight. पर परमेश्वर को महिमा देने के लिए। In John 8 verse 29, और यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसके 29 आयत में, the one who sent me is with me. और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, He has not left me alone, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, for I always do what pleases him. क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। What Jesus said, my friends, और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं that I am not alone. कि मैं अकेला नहीं हूँ, God is on my side, मेरा भेजने वाला मेरे साथ and I do all that works which is pleasing him. और मैं सर्वदा वही कार्य करता हूँ जो उसको प्रसन्न करता है। Jesus has established his fellowship with Father, और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी परमेश्वर के साथ जोड़ी, and that's why God had helped him to get his disciples at best. और इसलिए परमेश्वर ने उनकी सहायता की उनकी उनको चेलों को उनके साथ जोड़ने की। And Jesus had chosen disciples with the power of God. और प्रभु यीशु मसीह ने जो चेले उन्होंने चुने वो परमेश्वर की सहायता के साथ, And we can see that whole night he prayed, और हम देख सकते हैं कि उन्होंने पूरी रात प्रार्थना की, and then at the morning he selected the disciples. और अगली सुबह उन्होंने जो चेलों की पहचान And we की, know उनको that the बुलाया। disciples had made the earth upside down. और जो उनके चेले थे उन्होंने धरती को हिलाकर रख दिया। And that's why we had this Bible in our hands. और इसीलिए उनकी वजह से ही जो बाइबल हमारे हाथों में है। Hallelujah. हालेलुया। So that is, my friends, you have to know. और ये बात हमें जानने की जरूरत है, When you are in the fellowship of God, जब हम परमेश्वर की संगति में हैं, you will get the people who will really shake the earth with you. आप वो इंसान बन जाएंगे, उन लोगों के साथ आपकी संगति बननी शुरू हो जाएगी जो इस धरती को हिला देंगे। Hallelujah. Hallelujah. That's, my friends, you have to be very assured. और इसलिए आपको पूरे महत्व निश्चयवान होने की जरूरत है इस कार्य के लिए। And the fifth point is, और 5वां टॉपिक ये है, one who waits and is in the mission of Jesus. जो यीशु का इंतजार उसकी योजना में होगा। And we will see from 1 Peter chapter 1 verse 2. और हम देखेंगे पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसकी Yes, दूसरी let's आयत। take it from our और Bible. हम इसको वचनों में से पढ़ेंगे। Because Bible says that we have to be the witness and the witness of our Lord Jesus Christ. क्योंकि वचन हमें कहता है कि हमें परमेश्वर के इंजील बनने की जरूरत है, उनकी पत्नियां बनने की। And that's why we will be focusing upon the scripture and the word of God. और इसीलिए हमें वचनों को देखने के लिए बहुत जरूरत है। And in the 1 Peter chapter 1 verse 2. और हम पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसकी दूसरी आयत में देखेंगे। Okay, we will see in the 1 Peter chapter, please you could read. पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसकी दूसरी आयत। Yes. और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए And you हैं। can read from 3 to 5. और हम 3 से 5 तक पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल अजय मिलास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, इनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। And we can see that we had been elected by Almighty God. और हम देखते हैं कि हम परमेश्वर की ओर से चुने गए हैं। Could you tell them auntie to go just, Yeah. So until the time we are getting some issues, so just I would like to let Sharon to go for a while. Then till the time I will be helping you out to read from the scriptures, that is 1 Peter chapter 1 verse 2 to 3, 5. And it's written, elected according to the foreknowledge of God the Father, in sanctification of the Spirit for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled and that does not fade away, who reserved in heaven for you who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. So Bible says that we have been called by Almighty God and we have been chosen by God. और वचन कहता है कि हम परमेश्वर की ओर से चुने गए और उनकी ओर से बुलाए गए हैं। And it has been said that He had called us in His mercy. और वचन कहता है कि हम उनकी दया के अनुसार बुलाए गए हैं And we had been called for a living hope और हम एक जीवित आशा के होने के लिए बुलाए गए हैं and for the resurrection of our Lord Jesus और हम Christ. प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने के गवाह के लिए बुलाए गए हैं। And that's, my friends, we have to be the witness every day. और इसलिए हमें भाइयों और बहनों हमें जरूरत है हम गवाह बने। Every day we have to witness and tell about Jesus Christ. हर दिन हमें गवाह बन के प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है। And in 13 we will see 13 to 16 और इसी अध्याय की 13वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक हम what देखेंगे it's written. Please you can और read. इसमें हम पढ़ेंगे इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांध कर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो तो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलाने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी आज्ञाता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। Yes, that He says that you have to gird up the loin of your mind. Yes, it is written, be sober and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. We have to be sober. We have to be serious in the presence of God. And it is written as obedient children, not conforming yourself to the former lust as in your ignorance, but as He called you is holy, as you be holy in all of your conduct. Because it is written, be holy and I as I am holy. Bible says that you have to not called for becoming like sinners, but you are called to be in His holiness. और परमेश्वर की बुलाहट हमें पवित्र बनने के लिए है। And He says that you have been called to just not live in your old sins, और वचन कहता है कि हम अपने पापों में जीने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, but we are called to be serious. पर हम सचेत होने के लिए बुलाए गए हैं। You are not called to have entertainment in the church, और आपको कलीसिया में मनोरंजन के लिए नहीं बुलाया but गया you है, are called to become holy. पर आपको पवित्र बनने के लिए बुलाया गया You है। have been called that you have to become in His nature. और आप बुलाए गए हैं ताकि आप उनके स्वभाव में ढलें, And you have been called that you can fight against the enemy. और आप बुलाए गए हैं कि आप दृढ़ता से उस जो दुश्मन है जो शत्रु है उसके खिलाफ लड़ें। Because many people are already in the trap of Satan. और बहुत से लोग अब तक अभी भी शैतान के कब्जे में हैं। So we will see one more scripture. और हम एक और आयत Matthew देखेंगे, chapter 5 verse 19. मत्ती उसका 5 अध्याय उसकी 19 आयत, And it has been written, और वहाँ इस प्रकार लिखा है, whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men so shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. Yes, sure. It has been there in Matthew chapter 5 verse 19. मत्ती उसका 5 अध्याय उसकी 19 आयत में देखेंगे, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा ठहराएगा, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग में राज्य में महान ठहराएगा। Yes, we are called as the people who obey every word of God. और हम वो संतान परमेश्वर की बनने के लिए बुलाए गए हैं जो हर एक वचन को मानता है। We have been called that whatever Bible says, we have to do the same. और हम बुलाए गए हैं कि जैसा वचन कहता है, जैसा व्यवस्था कहती है, उस प्रकार अपना जीवन जिए। We have been called that we ought to preach as the word says. और हम बुलाए गए हैं कि हम उसी प्रकार प्रचार करें जैसा वचन कहता है। In 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, और पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत that we में, have to wait for Jesus Christ.
कि हमें प्रभु यीशु मसीह के इंतजार में रहना है। In Luke chapter 24, 47 to 48, और लूका उसका 24 अध्याय उसकी 47 से 48 आयत में you had been called to preach the reminiscence means for sin repentance. और आप बुलाए गए हैं कि जो पाप आप अंगीकार करके परमेश्वर के साथ फिर से जुड़े। You had been called to preach the name of Jesus Christ. और आप बुलाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को फैलाने के लिए। You had been called that you had to tell the truth of sin. और आप बुलाए गए हैं कि आप पाप की सच्चाई को सामने ला सकें। And you had been called, and in 48 it is written that you are my witness. और उसकी 48 आयत में लिखा है कि आप बुलाए गए हैं गवाह बनने के लिए। In 1 Corinthians chapter 7 verse 19 we will see, और पहला करंथियां उसकी 7वां अध्याय उसका 19 आयत में we देखेंगे। know that there had been issue of water because some of the times the Satan also tries that the preaching shall be disturbed. और कुछ कार्य शैतान लाने की कोशिश करता है कि जो परमेश्वर का कार्य हो रहा है लोग उसके साथ इंटरेक्ट ना कर But पाएं। I believe that you all will cooperate with this issue. पर हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ इस बात में कार्य And we साथ देंगे। get a very deep pardon that it had held today. और हमें बहुत बड़ी माफी चाहते हैं कि आज ये हुआ। But from next week we will surely work on improving our audios. और हम कोशिश करेंगे अगले एतवार से अगली मीटिंग से कि हम अपनी आवाज को सही तरह And it is written in 19. और 19 आयत में लिखा But it है, is written that keeping the commandments of God is what matters. Yes. और लिखा है ना खतना कुछ है और ना खतना रहित परंतु परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही सब कुछ है। You know that whatever is that you have to obey the word of God. और हमें जानने की जरूरत है कुछ भी हो हमें वचन को मानना। In Ephesians chapter 6 verse 18 it said, I will not let you read because time is running out. और हम देखेंगे अब इफिसियां उसका 6वां अध्याय उसकी 18वीं आयत में हम That we पढ़ेंगे had to be prepared and always be in prayer. और उसमें लिखा है कि हम जागते हैं सचेत रखें हमेशा प्रार्थना में रहें। And in Philippians chapter 1 verse 6, और फिलिप्पियों उसका 1 अध्याय उसकी 6वीं आयत में the one who has begun the work in you, और जो कार्य प्रभु ने आपके अंदर शुरू किया है and he will end up in the coming of our Jesus और अपने Christ. आने वाले दिनों में पूरा करेंगे। Only Jesus can sustain your lamp सिर्फ यीशु मसीह आपके दिए को जलते रख सकते हैं by his spirit, अपनी आत्मा के द्वारा, which can light up the journey you are in. और वो आपके जीवन के सफर में रोशनी डाल सकते हैं। Only Jesus can help you to sustain your lamp. सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आपके दिए को जलने के लिए Always remember, man will leave you. हमेशा याद रखें मनुष्य आपको छोड़ देंगे He will leave you at the very point when you need. और जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो उसी समय वो आपको छोड़ के They जाएंगे। will turn their face away वो आपसे अपना मुख मोड़ लेंगे because they know that they have to stand at their help. और उनको पता है कि उनको आपकी सहायता के लिए खड़ा होना पड़ेगा। But only God will be there to take care for you. पर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आपके उस समय साथ होंगे Not at the time when you were living here. और सिर्फ अब के समय के लिए जब हम यहाँ पे रह रहे हैं And after your death also He will sustain. और आपकी मृत्यु के बाद वो आपको संभालेंगे And on the judgment day, और न्याय के दिन में you will be rewarded. और आपको इस चीज का फल मिलेगा। So today I would like to encourage you, my friends, और हम आप इस बात के लिए आपको प्रेरित करना चाहते that हैं let your lamps burning कि अपने दिए को जलते रखें with the word of Jesus Christ, परमेश्वर के वचन से, with the power of Jesus Christ, परमेश्वर की संगति उनकी ताकत से, with the spirit of our Jesus Christ. परमेश्वर मसीह की सामर्थ और उनकी आत्मा No के द्वारा matter what is happening in this world, कोई मायने नहीं रखता कि संसार में क्या हो रहा है what is happening in this time, don't look at it. और जो इस समय में हो रहा है उस पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। Satan will do to, just stop your lamp to shine. और शैतान इसी पूरी कोशिश में रहता है कि वो आपको दियों को प्रकाशमान ना होने दे। Satan will do its best that you shall not outshine with the nature of Jesus और Christ. शैतान अपनी पूरी जान लगा देता है कि आपके दियों को बुझने पर ला दे। But today I want to encourage you पर आज आपको प्रेरित करना चाहते हैं that keep your lamps burning कि अपने दियों को जलते रहें because He's coming back. क्योंकि वो वापस आ रहे हैं। They come like the 5 virgins उन 5 कुंवारियों की तरह who बने were very wise. जो समझदार थे And start from today to prepare your tomorrow. और आज के दिन कल के लिए तैयारी करना शुरू करें। God bless you, my friends. खुदावन आप सबको आशीष दे। Thank you, friends, for joining with us today. हमारे साथ आज के लिए मीटिंग में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। And we know that many problems had caused in just ending up the meeting.
और हम जानते हैं कि मीटिंग के आखिरी में कुछ प्रॉब्लम्स आई, but God is faithful. पर खुदावंत विश्वास On next week, अगले हफ्ते we will try to show you slides, हम कोशिश करेंगे कि आपको स्लाइड्स दिखे, and we are working on that together. और हम उस चीज पर काम कर रहे हैं, And next week we will see how the things will go on. और हम देखेंगे अगले हफ्ते कैसे बनता है। Continue to pray for us. और हमें फिर प्रार्थना में याद रखें, Remember us both in your precious prayers. और अपने प्रार्थनाओं में हमारा ध्यान रखें। As I and Sharon, we both are handling this ministry. और मैं और सिस्टर जी सिर्फ इस जो किंग्स पोस्टैरिटी पेज को चला रहे हैं, Not this page, but the youth mission. बट सिर्फ ये पेज नहीं, बट जवानों की सेवकाई भी। Because God has given the mission in our hearts, in both of our hearts. क्योंकि खुदावन ने वो जवानों के लिए बोझ हमारे हृदयों में दिया है, And that's why we are in prayer also. और इसलिए हम प्रार्थना में हैं। And if you're interested to be a volunteer with us, और अगर आपकी ये दिल की ख्वाहिश है, आप हमारे साथ काम करना चाहते then we हैं, both invite you with, cheerful heart. और हम बड़ी खुशी से आपका स्वागत करते हैं That you can also be a part of our youth team. और आप भी हम आपको अपेक्षा करते हैं, आपको इनवाइट करते हैं, आपको कहते हैं कि आप प्लीज हमारे साथ जुड़िए। And we want to save the youth of our not nation but of the world. ये हम इकट्ठे मिलकर इस संसार के नहीं, और सारे संसार के हर एक जन के, छोटे से छोटे जंतु में भी, हर एक कार्य में परमेश्वर के नाम को हिम्मत दे और जवानों को बताएं। And next time we will come with again interesting, not very interesting topic. और अगली बार भी हम पवित्र आत्मा की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आएंगे, And you must be prepared from today. और आज के दिन से तैयारी कीजिए। God bless you. खुदा आपको आशीष दे।